it. Okay. So yes, good evening everyone. Myself Ashish Suryavanshi, Director of Divine Touch Healing Center, and we called ourselves a healer. Okay, not a doctor. So we want to develop a perspective that people should prefer a doctor, healer before going to the doctor. Okay. So what's healing exactly? Neeraj sir, we have here. So Neeraj sir will explain us what's healing exactly is and what is the bone setting exactly. Okay. So yes, Neeraj sir, it's your call. Yeah. Good evening, everyone. So, there is a lot of difference between healing and treating. So, doctor will treat you, doctor will practice on you, and healer will heal you. So, healing is a holistic approach where all your problems are healed in a holistic way. If you are having a back pain, so doctor will prescribe you a painkiller, and calcium or a vitamin deficiency blood report, and then some vitamin tablets or injection. But healer will actually find the root cause that why you are having a back pain, and he will heal you from holistic way. So if you're having a back pain, that back pain may coming from your stomach, your bloating, your acidity, your constipation, or your flat foot, low arch. So there are n number of reasons for your back pain. So healer will exactly treat the root cause. So treatment are of two kind. One is if you treat your symptom, and the other is you treat the root cause. So we as a healer will treat the root cause, and in these 3 days you will also be taught to treat the root cause, how to assess, not just cracking the bone setting is not just about cracking the bones or that click click noise. It's a very deep and scientific knowledge that what actually is in a misplace, we have to make it in a place in a aligned manner. So for that, is it necessary to give that those high thrust? No, it's not at all advisable to give those high thrust. First of all, we should know what exactly bone setting is. Bone setting is works on three concepts, that it, whether it's a facet joint problem, whether it's a subluxation problem, or it's a degeneration problem. So these are the three problems where bone setting or chiropractic needs to be done. But for doing that, we need to assess whether it's a facet joint problem or a subluxation problem or a degeneration problem. And in bone setting or a chiropractic, there are number of different types of thrust. That is HVLA, that is high velocity low amplitude thrust. LVLA, low velocity low amplitude thrust. And the one which you see on Google, Instagram, YouTube, so-called bone setters or chiropractic, you must be seeing lots of videos, and you're getting mesmerizing by all those videos and influenced by the video. But actually, is that really the bone setting or a chiropractic? No, it's not at all. Bone setting is very gentle and precise. So thrusts are always high velocity and low amplitude thrust. What you see, those are HVHA, high velocity, high amplitude thrust. So that is not at all advisable for any patient. And as sir told, healer were if patient is coming with a cervical pain. So instead of treating cervical, we'll assess, we'll do the root cause, we'll do posture analysis, and then we'll treat the root cause. So just by simply mobilizing ankle, the cervical pain can subsidize almost 80 to 90%, and the range of motion, articulation of neck can range can go up to
40 to 60% in just 5 to 10 minutes without giving thrust. And bone setting is the thing where only you can work or get results on spine, that is cervical, thoracic, lumbar, sacrum, pelvis. But for peripheral joints, knee, ankle, wrist, shoulder, you need to work in a holistic way if patient is having those problems. For spine, cervical, thoracic, sacrum, pelvis dysfunction, bone setting is like an boon. It's like magic. But to treat the root cause, you need to treat everything. You need to assess, diagnose, and treat. It's not just blindly patient is coming to you, you'll ask him what's the problem, show the report, show the scanning, and then you'll make him sleep and start doing from feet to knee to hip, cervical, thoracic, then you'll manipulate his ears, his nose, and all this stuff. Is it necessary? No. Why to do donkey work? Just we need to be precise. What is the problem? Where is the problem? And what should be done? And that is what in these 3 days you will be teaching you how to treat, or instead of treating, how to heal the root cause. If you heal, so the result would be 80 to 90% positive. If you treat, it will be symptomatic. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Yes, sir. It Thank you. was a nice guidance for us. So, all are comfortable with English. So, it is quite understandable English, I think. So, now we will continue with English and Hindi in both language. Okay, because we have a mob from all over across India. And we have here uh, career opportunity for all of you, those who are uh, pursuing the education or searching for the career in healing or searching for the new career but don't know which field to get enroll. So healing is the best career nowadays uh, by considering the upcoming scenario of healthcare. ओके, तो ये जो हीलिंग में आप आना चाहते हो या जो लोग ऑलरेडी हीलिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको लगता है क्या कि आप फुलफिल्ड हो या फिर आप प्रॉपरली रूट कॉज डायग्नोज कर पा रहे हो? क्या आपको ये लगता है? यस और नो आपको चैट बॉक्स में शेयर करना है। क्या आपको लगता है कि आप रूट कॉज तक जा पा रहे हो? यस, सो यस आंसर्स वी आर गेटिंग। सो एनीवन थिंक दैट सच में मैं रूट कॉज आइडेंटिफाई कर रहा हूँ क्या, कि मैं सिम्टोम को ट्रीट कर रहा हूँ? ये भी सोचना जरूरी है ना, कि हम लोग रूट कॉज को ठीक कर रहे हैं कि सिम्टोम को ट्रीट कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया जो क्या कर रही है, सिम्टोम के पीछे भाग रही है। अभी आप बोन सेटिंग अगर देखेंगे तो इफ समवन इज हैविंग नी पेन, व्हाट पेशेंट एक्सपेक्ट, वेयर यू शुड ट्रीट हिम और हर? कौन सी एरिया में आप उसको ट्रीट करें ऐसे पेशेंट को लगता है? क्या उसका एक्सपेक्टेशन होता है? यस यस, चैट में रिप्लाई। यू मस्ट हैव टू बी एन इंटरैक्टिव, चैट में रिप्लाई करना है आपको। ओनली फ्यू आर रिप्लाइंग yes. So where patient want to get treated exactly at the area where he or she feeling the pain. तो जैसे नी में प्रॉब्लम है तो पेशेंट को क्या चाहिए कि मुझे नी पे ही आप ट्रीट करो
और डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, या हीलर्स है, थेरेपिस्ट है, वो भी क्या करते हैं कि वो नी के लिए ही, नी पेन के लिए ही दवाई देंगे, या फिर वहीं पे जो है वो थेरेपी देंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो पार्ट ऑलरेडी स्ट्रेस में है, ऑलरेडी पेन में है, उसको और छेड़ना और मोबिलाइज करना, यह सही बात है कि गलत बात है? और नी का प्रॉब्लम जो है, उसको पेन आ रहा है, वो तो सडनली नहीं आया, वो क्रॉनिक है। तो वो कहाँ से अराइज हुआ, ये देखना जरूरी है कि नहीं? यस और नो? क्या लगता है नी पेन के पीछे, एक एग्जांपल लेते हैं नी पेन, मोस्टली रूट कॉज क्या हो सकते हैं? आपको जो लगता है वो आंसर आप डालेंगे चैट में, कि अगर किसी पेशेंट को नी पेन है, आपको क्या लगता है उसके पीछे का कॉज क्या हो सकता है? ड्रायव्हर सकाळची ड्रायव्हरची हालत आहे ना. प्रणीत जी, आपका माइक म्यूट रखेंगे? यस यस, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। गलत बात है सर, वो तो गलत बात ही है ना सर। करेक्ट, वेट। दत्ता जी बोल रहे हैं कि वेट ये एक कॉज हो सकता है। ओके, और किसी को कुछ लगता है? हम्म, पोस्चरल डिफॉर्मिटी। ओके, फीमर रोटेशन। ओके, फीमर तो रोटेट हो गया, फीमर रोटेट क्यों हुआ? अल्टीमेटली रूट कॉज कहाँ पे जाके एंड होता है? व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या लगता है आपको? एंटेरियर और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, हिप टिल्ट। ओके, ओके, रॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन। ग्रेट, यू आर नियर बाय सर, दत्ता सर। ओके, ऋषिकेश सर इज सेइंग spine is the most crucial part of body. It is cartilage issue. Yeah, but why cartilage is degenerating? एक्स्ट्रा फ्रिक्शन क्यों हो रहा है कार्टिलेज का? Okay. तो ये सब चीजें है, आइडेंटिफाई हमें करना है। तो जब हम पोस्चरल डिफॉर्मिटी के बारे में जब देखेंगे, तो काइनेटिक चेन हमें समझना बहुत जरूरी है। बॉडी के बायोमैकेनिक्स हमें समझने बहुत जरूरी है। हाउ बॉडी इज वन यूनिट, ये कंसेप्ट सबसे पहले हमारे दिमाग में बैठाना जरूरी है कि बॉडी एक वन यूनिट है। कोई भी पार्ट जो है बॉडी का, वो कहीं से बाहर से पार्ट्स लाके असेंबल नहीं किए हैं, जैसे किसी कार के करते हैं। बॉडी एक सिंगल सेल से जो है वो डेवलप हुआ है। तो ईच एंड एवरी पार्ट हैज द कनेक्शन विथ ईच एंड एवरी थिंग ऑफ अ बॉडी। ओके, सो ये हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और इसमें कितने सिस्टम्स है? इसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड का, नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मसल सिस्टम है, विसरल ऑर्गन्स है, फेशिया है। तो ये सब जो है एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हुए जो है बॉडी को पूरा फंक्शन करते हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है। अभी हम यहाँ पे आप देख रहे हो एक इमेज। गलत एक्सरसाइज से भी हो सकता है, वो तो सही है सर। गलत एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज गलत है कि सही है? वो सही तरीके से भी करेंगे, लेकिन रॉन्ग पोस्चर के साथ करेंगे, वो ऑटोमेटिकली गलती होने वाली है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि मैनुअल मेडिसिन एग्जैक्टली क्या है। मैनुअल इन द सेंस, हाथ से जो हम ट्रीट करते हैं उसे हम बोलेंगे मैनुअल मेडिसिन। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे भी आप सीखने आएंगे, कोर्स के लिए आएंगे, और इसमें हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड रखे। बट जो फ्रेशर है, जो हेल्थ केयर में काम नहीं कर रहे, थेरेपिस्ट नहीं है, उनके लिए यहाँ पे एटलीस्ट 3 दिन के लिए रेसिडेंशियल कैंप को आना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब पेशेंट आता है, विल डू द पोस्चर एनालिसिस। पोस्चर एनालिसिस करेंगे, एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्यों क्रिएट हुई है। अगर सर्वाइकल का, स्पॉन्डिलिसिस का, स्पाइन का भी इशू है, तो भी उसका रूट कॉज आपके फीट में है। तो वैसे बायोमैकेनिक्स कहाँ पे चेंज हुए, काइनेटिक चेंज कहाँ पे, चेन कहाँ पे डिस्टर्ब हुए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का फीट का पोजीशन क्या है, फ्लैट फीट तो नहीं है, रिजिड तो नहीं है। तो ये चीज़ पे जो है ना, ये नीरज सर और इसमें डीप में हम डिस्कस करेंगे।
first of all, I'll cover what we are going to cover in this training, what we learn, how can we apply it, and what kind of results we would get, what kind of results our students are getting, how they are practicing, some success stories, fees, and everything. Then we'll go for the one-to-one discussion on each and every things. Okay. So first of all, posture analysis. Then after posture analysis, we must do the myofascial release. So what is myofascia? Only pressing the muscle. Do you think that it actually releasing the muscle? Okay. So myofascia क्या है, कैसे मसल चेंज ट्रैवल करती है, कैसे वो कनेक्टेड है, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नेक पेन है तो कहीं पे आप काफ में भी, पीठ में भी फेशिया रिलीज करके कैसे उसे टारगेट कर सकते हो या क्योर कर सकते हो, तो ये चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो मसल रिलीज कर देंगे, देन वील गेट स्पेस टू आर स्पाइन एंड जॉइंट्स टू गेट मोबिलाइज। तो फिर बाद में हम आएंगे बोन सेटिंग पे। सो बोन सेटिंग में हमने क्या किया कि अभी स्केलेटल सिस्टम जो है, स्पाइन जो है, उसका एडजस्टमेंट किया। अभी ओवरऑल क्या होता है, बोन सेटर जो प्रैक्टिस करते हैं, अभी किसी ने डाला था चैट में कि आई एम अ कायरोप्रैक्टर। ओके, तो कायरोप्रैक्टर अगर आप हो और अगर कोई पेशेंट आता है और आप सीधा पैर से शुरू करते हुए उसका सर्वाइकल तक पूरा झटका दे रहे होगा बॉडी, बराबर, एंड इफ यू स्टार्ट फ्रॉम अप अपर साइड फ्रॉम योर सर्वाइकल एंड एंड्स till the fingers of your feet. So does it the proper alignment you have did? Don't you think that you put body in another trauma? That body has never ever experienced such things, sudden things, and at during the very first sitting you are doing all these things with the patient. Okay. तो ये जरूरी है क्या? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सीधा क्या हो रहा है कि सब कर दे रहे हैं, तीर लग गया तो लग गया, बराबर। अभी उसमें इतने आवाज आते हैं कि वो ऑलरेडी मेस्मराइज हो जाता है पेशेंट, वो भूल जाता है कहीं पे टेम्पररी, वो उसका पेन सिम्टम्स वहाँ पे रिलीज हो जाता है। अगेन वो कंप्लेन करते हुए आता है 4 दिन बाद। आपको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या है। मैंने तो सब कर लिया, एमआरआई भी देख लिया, सब कर लिया, लेकिन पेन जा नहीं रहा है। तो मस्कुलोस्केलेटल पेन है तो वो सच में स्केलेटल सिस्टम से ही रिलेटेड है क्या, कि वो सिमिलर नहीं हो सकता क्या? हमें वो भी देखना जरूरी है। चलो अभी उस पे भी हम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेंगे कि पहले हमने क्या किया, अभी स्पाइन अलाइन कर लिया, जो भी है, जैसे स्पेसिफिक अलाइनमेंट किया है या फिर इनडायरेक्ट वे से किया है, डायरेक्ट मेथड से किया है। अभी वो अलाइनमेंट जो है ना, वो मेंटेन रखना भी तो जरूरी है ना। तो स्केलेटल को तो अपना खुद का पोस्चर है क्या कि वो सीधा खड़ा रहेगा? नहीं, मसल हैज गिवन द पोस्चर टू द बॉडी, इरेक्टेड पोस्चर टू द बॉडी। तो मसल पे काम करना जरूरी है। अभी रिलीज करने से होगा क्या, मसल हैज डेवलप देयर ओन शेप, कहाँ पे स्ट्रेच हुए हैं, कहाँ पे जो है श्रिंक हुए हैं, या कहाँ पे फ्यूज हुए हैं मसल, कहाँ पे ट्विस्ट हुए हैं। तो हमें मसल का टोनिंग करना भी बहुत जरूरी है, सो दैट along with the skeletal system, along with the spine, we will relocate or align the muscles too in their original position. एंड इन दैट फॉर्म कहाँ पे, जब जहाँ पे वो वीक है वहाँ पे वो ब्रेक हो रहे हैं, तो वो डेवलप होके स्ट्रांग हो रहे हैं। और जहाँ पे वो स्ट्रेच है वहाँ पे उनको जो है वो हम सपोर्ट देके उनको रिलैक्स कर रहे हैं, और वहाँ पे भी वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होता है मसल टोनिंग। देन विल कम टू द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, द विसरल मैनिपुलेशन। सो जैसे हम मस्कुलोस्केलेटल पे काम किया, तो हमें विसरल पे काम करना जरूरी नहीं है क्या? जैसे मैं हर मेरे सेमिनार में या मेरे रील्स में भी कहता हूँ कि एवरी पेन हैज द कनेक्शन विथ योर visceral, muscle and skeletal system, but we didn't know how all three systems are connected with each other। और उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ जाता है, नर्व्स भी आ जाते हैं, बट ये मेनली है। अगर मैं कहता हूँ कि किसी को राइट साइड शोल्डर में, नेक में बहुत पेन है, और मैंने लीवर का विसरल मैनिपुलेशन करने के बाद उसका वो पेन जा रहा है, उसका रेंज जो 20% में नहीं था वो 90% अबो जा रहा है, विदाउट टचिंग द शोल्डर, आप बिलीव कर पाएंगे? तो ये सब रिलेशंस है ना, बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स है। नीरज सर इसके ऊपर
डिस्कशन करेंगे ही, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक शॉर्ट में आपको समझा दिया कि एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या होता है, कहाँ पे एग्जैक्टली काम करना ज़रूरी है। एक वीडियो भी हमारे पास, आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल पे देखते होंगे तो किडनी टोसिस का एक वीडियो हम चलाते थे, जिसमें किडनी टोसिस अगर हो गया है, किडनी अगर उसकी जगह से स्ट्रेच हो रहा है, पुल हो रहा है या फिर टिल्ट हो रहा है, तब क्या क्या सबक्यूटेनियस नर्व्स रहते हैं उसमें जो भी स्ट्रेच आता है, उसके वजह से कैसे पेन रेडिएट होते हैं, जो एग्जैक्टली सेम होते हैं सियाटिका के पेन के सिम्टम्स के साथ। बट फिर रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, फिर वो पेशेंट को आप साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देते हो। बट एग्जैक्टली रूट कॉज क्या था, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से जगह पे आपको बोन सेटिंग सिखाते भी रहेंगे, आपको लग रहा है कि मैं तो बोन सेटर बन गया, मैं तो सब जगह से आवाज़ निकाल पा रहा हूँ, लेकिन आप इसमें किसी के बॉडी के साथ अननेसेसरी खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको और ट्रॉमा में डाल रहे हैं, ये हमारा कोई हक नहीं बनता है। तो ये तरीके से अप्रोच डेवलप करना, बॉडी इज वन यूनिट और होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द ऑल सिस्टम ऑफ बॉडी आना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे आपको डिवाइन टच में जो है मिलने वाला है, बिकॉज आर मिशन इज टू गिव 5,000 प्लस हीलर्स टू द सोसाइटी विद इन नेक्स्ट टिल द ईयर 2035। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी अगले 5 साल में ही हम इसे अचीव कर लेंगे। अभी ये तरीके से जो है काम आगे बढ़ रहा है, सो यूथ्स आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सिर्फ आपको सिखा दिया, कुछ तो भी टाइम निकाल लिया और बस हो गया, ऐसा नहीं है। बिकॉज उसके साथ में हीलर्स फैक्ट्री के साथ में हमारे ह्यूमन गैरेज का भी मिशन है कि हमें 2 करोड़ लोगों को जो है होलिस्टिकली हील्ड लाइफ देना है इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल। तो ये कैसे हो पाएगा 2 करोड़ का काउंट? ड्यू टू आर 5,000 हीलर्स ओनली। तो इसलिए हमें जेन्यून हीलर सोसाइटी को देने हैं। महाराष्ट्र के हर एक स्टेट में तो अभी हम हमारा एक यूनिट जो है वो फॉर्म करने जा ही रहे हैं, हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के साथ कोलैब करके ऑन अ फ्रेंचाइजी मॉडल। तो ये धीरे धीरे जो है आपके सहयोग से बढ़ते जाएगा। ओके, तो आप जैसे देखेंगे कि कॉरपोरेट में भी हम काम करते हैं। आर हीलिंग पार्टनर्स आर सीजी पावर। ओके, आर हीलिंग पार्टनर्स आर सीजी पावर, मुरुगप्पा, महिंद्रा, थाइसन क्लब, रोटरी, वीएचपी, आदित्य बिरला हॉस्पिटल, एसएमबीटी हॉस्पिटल है, रोटरी क्लब है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, अभी इसके साथ और भी जुड़ रहे हैं नाम। तो ये कॉरपोरेट्स के साथ में भी हम काम करते हैं। अभी कौन से क्या कंसेप्ट लेके हम कॉरपोरेट के पास जाते हैं, कैसे वो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम वहाँ पे जाके उनके लिए सेशंस कंडक्ट करें, और वहाँ से जो है हमें बल्क में जो है इंक्वायरीज भी मिलती है। तो ये सब चीज़ें भी ट्रेनिंग के अलावा हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप आपके एरिया में ग्रो कर सकते हो, ब्रांडिंग कर सकते हो, बल्क में कैसे आप आपके पेशेंट्स भी विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी आप कमा सकते हो। ओके, तो डिवाइन टच का ही आपको फायदा एक हो जाता है। दूसरा है यहाँ पे कि वी आर द ओनली वन दोज हु गेट फीचर ऑन जी न्यूज फॉर दिस होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच। और जो भी हमने हीलर्स फैक्ट्री जो हमने स्टार्ट किया है, और होलिस्टिक वे में हम लोगों को जो पेन फ्री लाइफ दे रहे हैं, वो दोनों का रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे इनवाइट किया गया था। देन कुछ इंटरव्यूज और अवार्ड्स भी हमें मिले हैं, आरोग्य दूत करके अवार्ड मिला है, वैद्य भूषण करके भी अवार्ड मिला है। तो ये सब हम काम कर रहे हैं डिवाइन टच। आप हमारे प्रोफाइल को इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे देख सकते हो। ये बताना क्यों ज़रूरी है कि आप सीरियसली सुने, ओके, कि हम यहाँ पे सिर्फ बिजनेस करने नहीं बैठे। तो हम एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं, आपको इसमें जुड़ना है। और जो हम आपको दे रहे हैं ना, वो आपको कहीं पे ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, और जहाँ पे आपको मिल रहा है, मिल भी गया, आप बहुत यहाँ पे जो दे रहे हैं उससे 5 गुना पैसा देंगे, लेकिन हो जाने के बाद आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये था क्या और इसको यूज कहाँ पे करना है। चलो, ये सब प्रोटोकॉल, आपने 4 प्रोटोकॉल मेरे जो है, विसरल मैनिपुलेशन, एमएफआर, आईएसटीएम, बोन सेटिंग, ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन, पोस्चर एनालिसिस, फूड बायोमेकेनिक्स, ये सब सीख लिया। अलग 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 5 जगह से सीखा। अभी ये सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, ये लगाते लगाते आपका और वहां पे 2-3 साल निकल जाएगा। आपको अगर वो टाइम बचाना है और इतना सब गीता
पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो गीता का सार आपको चाहिए जो एक्चुअली अप्लाइड नॉलेज है, तो आपको डिवाइन टच के पास आना है, जिससे आपको एक हाईवे मिल जाएगा कि मुंबई से दिल्ली जाने में जहाँ पे पहले के ज़माने में सपोज दैट ट्रेडिशनल रास्ते थे तो 3 दिन लगते थे। ओके, या फिर जब हमने स्टार्ट किया तब तो जंगल ही था, कुछ रास्ता ही मालूम नहीं था। अभी तो हमने हाईवे बना के रखा है, तो अभी कुछ ही घंटों में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन रूल क्या है कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना, जो बताया है वो चीज़ें समझ लेना, और उतना ही जो है वो प्रॉपर वे में करना। तो फिर करते करते क्या हो जाएगा, आपको एक्सपर्टीज डेवलप होते जाएगी। अभी इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जगह पे कि हम इतने टेक्निक सिखाएंगे, उतने टिकाए सिखाएंगे, 100 सिखाएंगे, 150 सिखाएंगे, 200 सिखाएंगे, ये सब चलता है। अभी इतने टेक्निक सीख के क्या करेंगे, और हड्डियां तो उतनी ही है, टेक्निक्स कैसे कम ज्यादा हो रही है। एक ही मैनिपुलेशन को 3 तरीके से भी आप आपने कर लिया तो 3 टेक्निक हो गई। इसमें टेक्निक इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉडी का बायोमैकेनिक्स अगर समझ में आया, देन यू कैन डेवलप योर ओन टाइप ऑफ मैनिपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि पेशेंट का क्या कंडीशन है, कैसे है, कहाँ पे आपका पोजीशन है, आपको वहाँ पे स्पेस कैसे अवेलेबल है, वो तरीके से। तो ये कंसेप्ट का जो है पार्ट है। आपने देखा होगा कि फॉरेन में कायरोप्रैक्टिस होते हैं, वो सिर्फ ह्यूमन पे नहीं तो एनिमल्स में भी करते हैं, सब चीज़ें। वैरायटी है एनिमल्स में, तो बहुत वैरायटी आ जाता है, फिर भी वो कैसे कर लेता है, बिकॉज एक बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो उसको मालूम है। ओके, तो ये टू मेड डिफिकल्ट टू अ सिंपल फॉर्म, यही खासियत है डिवाइन टच की। और इसीलिए जो है बहुत सारा रिसर्च बोलेंगे, प्रैक्टिस है, समय जो है हमने दिया है, और ये डिफिकल्ट को हमने सिंपल बनाया है। जब हमारे पास नो वॉइस आते हैं कि 12 साइंस हुआ है या फिर ऐसे किसी बैकग्राउंड से है, और फिर हम उनको जो चीज़ें बताते हैं वो बोलते सर ये तो बहुत सिंपल है, मैं तो कर लूंगा। लेकिन उन्हें लगता है कि इतना सिंपल करने से रिजल्ट नहीं आ सकता, लेकिन जब वो खुद वो रिजल्ट महसूस करते हैं या फिर अपने कलीग्स के ऊपर देखते हैं, तो वो बिलीव करते हैं। लाइव पेशेंट के ऊपर जब देखते हैं तब उनको बिलीव आ जाता है। वो वही मैंने अभी रिव्यूज चलाए थे, उसमें वो रिव्यूज भी सर ने शेयर किया था कि वो हमारे पेशेंट थे, और जब उन्होंने ये हर घर हीलर मिशन के बारे में सुना, वो एक हाई स्कूल में टीचर भी है, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, सर मुझे ये सीखना है। अरे ब्रो, आए सीखने के लिए, और वहीं पे जब ट्रेनिंग में आए, और तब उन्होंने जो उनका अनुभव बताया कि क्या एग्जैक्टली उनको प्रॉब्लम था, और तब तो वो नेक पेन के लिए आए थे। बाद में फिर बहुत लंबा समय बीच में गया, 1 साल का समय गया, फिर उन्होंने उनके जो वर्किंग हैबिट्स है वो चेंज नहीं किए, और एक कुछ नॉर्मल ट्रॉमा हुआ था तो लंबर पेन में वो सीधा पट्टा बांध के आए थे। वहाँ पे पहली सिटिंग में जो उनको ट्रीटमेंट हमने किया, हमने हाथ भी नहीं लगाया लंबर को, और 3 दिन तक वो बंदा आराम से बिना किसी सपोर्ट के पेन फ्री लाइफ जी रहा था। वो उन्होंने शेयर भी किया है उसमें, और अभी वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी कर रही है इसमें आने के लिए। तो ये मिशन कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा है। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट का मैंने सैंपल आपको दिखा है कि डिप्लोमा अगर आपको करना है तो ये तरीके का सर्टिफिकेट होता है। ये दिखाने की जरूरत क्यों है, आज मार्केट में बीएसएस के सर्टिफिकेट के जैसे ही एग्जैक्टली प्रिंट करके सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है उसको वेरीफाई कहाँ पे करना है, कौन सा लिंक है, कहाँ पे जाके मुझे मेरा मार्कशीट दिखता है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दिखता है, मुझे आईडी मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है तो कैसे रहता है, उसका यूज क्या है। ओके, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि हमें अगर ये सर्टिफिकेट के ऊपर काम करना है, तो ये सब चीज़ें गाइड नहीं होती है, और कोर्स के नाम भी डिफरेंट ही रहते। अभी मेरे पास एक सर्टिफिकेट आया, बार बार आते रहता है, वो लोग जाते करते बाद में कोई तो भी भेजता है कि बीएसएस डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग एंड कायरोप्रैक्टिक थेरेपी। ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है आगे एंड कायरोप्रैक्टिक। कायरोप्रैक्टिक वर्ड हम यूज ही नहीं कर सकते, वो जिनके करिकुलम में है उन्होंने पेटेंट कर लिया है, फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले यूज करेंगे, और ना हम कायरोप्रैक्टर बोल सकते हैं खुद को। सो ये सब चीज़ें है ना, इससे थोड़ा सा सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट है कि जो लोगों को यहाँ पे सीख के फॉरेन में जाना है, प्रैक्टिस करना है, तो बीएसएस के सर्टिफिकेट्स के ऊपर भी वीज़ाज मिल रहे हैं लोगों को, स्पेशली अरेबियन कंट्रीज में वगैरह जाने के लिए। बट अभी क्या है, वर्ल्ड स्किल काउंसिल से भी बीएसएस का जो है कोलैबोरेशन हो गया है, और वो सर्टिफिकेशन भी सिर्फ डिवाइन टच आपको
ये कोर्स में प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए भी आप एड ऑन एडिशनल अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कुछ 6 महीने का प्रैक्टिस है और कुछ आपको प्रैक्टिकल्स, वीडियोस, पेशेंट टेस्टिमोनियल ये सब भेजना पड़ता है। और जब वो हो जाता है तब आप वर्ल्ड स्किल काउंसिल के लिए भी अप्लाई करके ये सर्टिफिकेशन भी गेन कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाता है, आपके प्रोफाइल में और एक जो है एक डेजिग्नेशन आ जाता है, या फिर और प्रोफाइल आपका स्ट्रांग हो जाता है। तो ये भी एक ऑप्शन हमने रखा है। देन फ्लेक्सी लर्निंग मोड है हमारा, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड जो है वो सभी के लिए है, बट जो ऑलरेडी हीलिंग में है वो लोग ऑनलाइन को जा सकते हैं। जो फ्रेशर्स है उन्हें एटलीस्ट आपने ऑनलाइन सेशंस भी कंज्यूम कर लिए, तो आपको 3 डेज या सिर्फ बोन सेटिंग ही सीखना है तो 2 डेज के वर्कशॉप के लिए आना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, आपको यहाँ पे नासिक में वर्कशॉप के लिए आना ही होगा। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, हम वर्कशॉप सिर्फ नासिक में हमारे सेंटर पे ही कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम आपको सबसे ज़्यादा इफिशिएंटली सिखा सकते हैं। कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं रहता है होटल के जैसा। रात को 10 बजे तक भी ज़रूरत है तो भी लेक्चर्स कंटिन्यू होते हैं। इवन दो यू कैन प्रैक्टिस ओवर देवर, आई कैन असाइन द होल टीम टू यू फॉर ट्रेनिंग, ट्रीट एंड मेंटोरिंग। और उसके ही साथ में लाइव वहाँ पे जो पेशेंट्स वगैरह चलते हैं, आपको वो केसेस भी देखने के लिए मिलते हैं, उनके अनुभव आपको सुनने के लिए मिलते हैं, वो कब से आ रहे क्या है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और अलग अलग केस स्टडीज आपके सामने आते हैं। तो फ्लेक्सी लर्निंग मोड में कैसे आपको करना है, जैसे आपको वर्कशॉप के लिए भी आना है, अभी 5, 6, 7 मार्च को जो हमारा वर्कशॉप होने वाला है, तो वर्कशॉप के लिए भी आना है, फ्लेक्सी लर्निंग मोड के लिए जाना है, तो आपको क्या करना है, 6,000 रुपीज एडवांस पे करना है। एडवांस पे करने के बाद क्या होगा, यू विल गेट अ रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ थेरी, कंसेप्ट ऑफ बॉडी काइनेटिक चेन, बायोमैकेनिक्स, और ये सब जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो कैसे क्या क्या सिस्टम से कैसे कनेक्टेड है। तो वो एक अराउंड 5 आवर्स का आप पूरा कंटेंट कंज्यूम कर लेंगे। और आपको मालूम है पूरा एनाटॉमी, आप बोलेंगे तो भी आपको ये एनाटॉमी जो है ये समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज कौन से चीज को क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउ दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज यहाँ पे होगी। दूसरा है, जैसे ही आप वो कंप्लीट कर लेंगे, आपको नेक्स्ट पेमेंट करना है 8,000 रुपीज का। 8,000 का पेमेंट जैसे ही आपका आ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, जो आप सीखने वाले हो फुल बॉडी अलाइनमेंट टेक्निक्स, उसके सब आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, देन वो आपको पूरे कंज्यूम करने हैं। अभी इसका फायदा क्या है कि आप जितना जल्दी ये वीडियोस को एक्सेस करेंगे उतना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे। और वो अगर आप देख के आएंगे एज अ मूवी भी, अगर आप देख के आते हो तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आने के बाद आपका उतना कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, आप इस पे दे सकते हो, प्रैक्टिकल पे दे सकते हो। ये एक वहाँ पे हमारा मोटिव है। तीसरा है, यू विल गेट एक्सेस टू मायोफेशियल मसल रिलीज प्रोटोकॉल। सो मसल रिलीज जो मैंने बोला था वो आप कर सकते हो। उसी के साथ अ, आपको जो है आईएसटीएम एंड मायोफेशियल डीकम्प्रेशन के भी वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है, सो आईएसटीएम इज व्हाट, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। ओके, तो इसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। देन फंक्शनल कपिंग भी, उसमें कपिंग के भी प्रोटोकॉल रहेंगे। देन फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा, नेक्स्ट पेमेंट जो है 6,000 का। तो इससे जो है, जो फ्रेशर है वो ये चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा कंसेप्चुअली जा रहे हैं या फिर कुछ फाइनेंस का इशू है, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। और पहले जितना मसल और बोन्स पे प्रैक्टिस करके आप एटलीस्ट 100 में से 70 पेशेंट कर लो, 30 आपके नहीं है। और जब आप वो सब प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ महीनों बाद आप ये कोर्स का भी एक्सेस ले सकते हो। ओके, सो यू विल गेट एक्सेस ऑफ विसरल मोबिलाइजेशन रिलीज वीडियोज एंड प्रोटोकॉल्स। एंड देन लास्ट पेमेंट आपको करना है जब आप इंटर्नशिप के लिए या फिर प्रैक्टिकल वर्कशॉप के लिए आप आते हो, देन यू हैव टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,500। तो वर्कशॉप तक हमारे पास ये सब आना बहुत ज़रूरी है, आपका सब पेमेंट्स और आपको ये सब कंटेंट कंज्यूम करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए एज सुन एज अर्ली पॉसिबल आप
जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, इसमें एक स्टेप है 6,000 का जो आप जो है बच्चे स्किप कर सकते हैं। तो 32,500 टू बी पेड इन 5 स्टेप्स टिल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल वर्कशॉप। तो 2 महीने से ही हमारा जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। अभी इसमें कुछ ऐसे है कि सिर्फ बोन सेटिंग डिप्लोमा फ्लेक्सी लर्निंग मोड में जाना है उनको, और सिर्फ बोन सेटिंग डिप्लोमा के लिए जाना है, फ्रेशर है, 12th साइंस हुआ है या साइंस ग्रेजुएट है, तो वहाँ पे भी यही स्टेप है। और यहाँ पे आपको क्या है कि वीडियोज ऑफ मसल रिलीज 6,000 का जो आपका हो जाएगा पेमेंट, उसके बाद आपको फोर्थ पेमेंट है 7,500 का। ओके, तो फर्स्ट पेमेंट आपका आ गया 6,000 का, वही प्रोसेस है, सेकंड आ गया 8,000 का, और थर्ड आ गया 6,000। तो मसल और जॉइंट और स्केलेटल पे आप काम करना सीख गए, उनको रिहैब करना सीख गए। तो यहाँ पे विसरल का स्टेप स्किप किया है। और जो सर्टिफिकेशन आपको मिलने वाला है डिप्लोमा का, ओके, वो डिप्लोमा सर्टिफिकेशन के लिए वो कॉलेज को जो है 7,500 का एडिशनल पेमेंट करना है। तो एडमिशन के पहले भी हमें ये देखना है कि मैं कितना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, मैं घर पे जाके उसको परफॉर्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो आपको कुछ वीडियोस भी वहाँ पे बनाने हैं, हमें भेजने हैं। और ये 7,500 है, इमीडिएटली नहीं भी पे किया आपको, 1 से 1.5 महीने का कूलिंग पीरियड होता है, उसके बाद में भी आप ये इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो। तो अगर किसी को बोन सेटिंग डिप्लोमा सीखना है, आना है वर्कशॉप के लिए, तो आप 6,800 20,000 रुपीज पे करके आप आ सकते हो और वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। अभी किसी का ऐसा है कि मुझे 20,000 भी अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी हमने एक मॉडल बनाया, बट उनको मसल पे काम करने के लिए तो उसमें हम बोन सेटिंग में सिखाते ही है, लेकिन एमएफआर और ये चीज़ें भी सीखना ज़रूरी है, वो उसके लिए भी थोड़ा सा गैप लेके फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो ये मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको थोड़ा लगता होगा, लेकिन क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास जो है ना सब कैटेगरी के लोग आते हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी है, हीलर्स भी है, सब है। ओके, सो किसी के पास प्लेंटी ऑफ मनी है, किसी के पास शॉर्टेज है, किसी को स्टेप में जाना है, तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी हमने रखा है। लेकिन हमारा मोटिव क्या है कि इंस्टेड ऑफ सिम्टोम रूट कॉज पे काम हो, ये तरीके से जितना नेसेसरी एंड सफिशिएंट है उतना तो भी ये वर्कशॉप से हर एक बंदा लेके जाए। ओके, सो पूरा अगर डिप्लोमा विदाउट विसरल मैनिपुलेशन करना है तो आपका फीस हो जाए 27,500, जो इनिशियली आपको 20,000 पे करना है टिल द वर्कशॉप, और 7,500 आप 1 महीने या 2 महीने के बीच में भी आप पे कर सकते हो। ओके, फिर इसका एक एग्जाम भी रहता है, और अप्रैल में एग्जाम रहेगा आपका, और मई में जो है रिजल्ट्स वगैरह आ जाएंगे। और ये मॉडल कैसे रहेगा, क्या रहेगा, ये सब आपको वर्कशॉप में या फिर एडमिशन के बाद पूरा समझाया जाएगा। उसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल्स के वीडियोस भी सबमिट करने होते हैं। कुछ अभी मेरे सक्सेस स्टोरीज है, मैं आपको बता दूं, तो ये इनको आप यूट्यूब पे भी सुन पाएंगे। ओके, तो ये डॉक्टर भक्ति पाटिल मैम है, नेचुरोपैथ है। तो मैम ने खुद यूट्यूब पे रिव्यू दिया है कि शी हैज स्टार्टेड अर्निंग मोर देन 1 लाख पर मंथ विद इन अ 5 to 6 month ओनली। और उन्होंने कोई भी सोशल मीडिया पे कैंपेन नहीं किया, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से, रेफरल से ही पुणे में उन्होंने वो माइलस्टोन अचीव कर लिया था। ओके, देन वेदांत भरत सर है, सर भी आज के डेट में 3 से 4 लाख रुपया जो है अर्न कर रहे हैं। उनका खुद का भी योगा में पहले से ही बहुत बड़ा काम था, और जब सर ने ये ज्वाइन किया और खुद को अपग्रेड करते गए, हमारा नया नया कोर्स आते गया, वो सीखते गए, और ये तरीके से आज वो ये माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है। वो खुद चेंबूर में प्रैक्टिस करते हैं। देन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है विवेक संगपाल जी का, जो एक जिम ओनर है, और साथ ही में सर का एबेकस का भी फ्रेंचाइजी में बहुत बड़ा काम है। और जो जब सर ने मेरा हर घर हीलर का वीडियो देखा कि कोई भी सीख सकता है, या फिर बायोमैकेनिक्स के बारे में सर ने जब सुना, तो उन्हें लगा कि ये सीखना बहुत ज़रूरी है। सर सीख के यहाँ से चले गए, उनको एक ऐसा कुछ काम मिल गया ऐसा कि जो वो चाहते थे, जिससे वो पैशनेटली कर पाए। वहां से सर ने जो प्रैक्टिस स्टार्ट किया 500 रुपये से, वो 5,000 रुपीज पर सिटिंग तक अभी जिम के जो हेल्थ प्रैक्टिशनर है या फिर जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए वो लेके गए हैं। तो ये सब है। और
बाकी भी आप इनको अगर सुनेंगे तो वैसे और एग्जांपल आपको मिलेंगे। कुछ है जैसे विकास गुरव सर है, तो ये तो अभी प्रॉपर फ्रेंचाइजी लेके ही पंढरपुर में सर ने काम स्टार्ट किया है। और वहाँ पे हम बैचेस भी लगाते हैं वहाँ के एरिया के स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ से ट्रेनर्स भी जाते हैं। देन चंदन राणे सर है, वो जलगांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी उन्होंने जो 5 सीटिंग का ही पैकेज है, लोग 25,000 दे के भी उनसे वो पैकेज ले रहे हैं। तो इसमें क्या किया है इन्होंने कि ऐसे लोगों के लिए भी रखा है, और जिन्हें ये अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए भी एक दिन सर ने रखा है, उस दिन उन्हीं पेशेंट को वो करते हैं। सो प्रशांत यादव सर का मैं एग्जांपल दूंगा, टोटली नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है, और सर एक मसाज थेरेपिस्ट है। और सर ने जब यहाँ पे आके बहुत सोचा, उन्होंने पहले उनके लिए अमाउंट भी 30,000 या तो ये बड़ा था, बहुत सोचा, बहुत बार हमारी बात हुई 1 to 1, अल्टीमेटली उन्होंने एडमिशन ले लिया मेरे कहने पे, और पैसा जुटा के ले लिया, आ गए सर यहाँ पे। बहुत उनकी क्वेरीज थी, हमने एकदम सही तरीके से लिया, मेडिकल का जो नॉलेज है उनके हिसाब में उनको समझे ये तरीके से हमने वो लिया। और उनको बोला कि सर बी अ गुड फॉलोअर ओनली, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। पहले ही मैंने वो कंडीशन डाला था उनको, जितना बताया उतना करते थे। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आया तो कंसल्ट करते थे मेंटोर से, मेंटोरिंग होती थी। इनिशियली पेशेंट आया, अगर समझ में नहीं आता है क्या करना है तो क्या करना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट वो हमने बता दिया था, उतना वो कर लेते थे। और सेकेंड सीटिंग को जब 4 दिन बाद पेशेंट आने वाला है, तब उसके बीच में मेंटोर से कंसल्टेशन करके प्रोटोकॉल पूरा डिजाइन करके वो करते थे। और कौन सा पेशेंट करना है कौन सा नहीं करना है ये भी उन्होंने सीखना चालू किया। और जब हम बोलते थे कि सर आपको ये पेशेंट नहीं करना है, तो कुछ पैसे कमाने के चक्कर में फिर भी उन्होंने वो पेशेंट नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया वो पेशेंट या रेफर कर दिया। तो इसका फायदा ये हुआ कि उनका रिजल्ट का जो ग्राफ है ना वो बढ़ते ही गया, निगेटिव केस उनका आया ही नहीं। और अभी ऐसा सिचुएशन है कि आसपास के ये खुद एक छोटे से गांव में रहते हैं, तो आसपास के गांव से लोग गाड़ी कर करके, एक एक गाड़ी में 10-10 लोग इनके पास आते हैं। और उन्होंने 170 पेशेंट वो पहले महीने में ही कर लिए थे जब यहाँ पे गए। तो कैसे कर लिए सर ने, तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है कुछ नहीं। जब वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे ना, तब हमने क्या किया, उनके कुछ वीडियोस हमने शूट करने के लिए बोले, और उन्हें बोला आप स्टेटस पे डालो। वो डालते गए, दोस्त थे रिश्तेदार है, पूछते गए क्या कर रहे हैं भाई, क्या सीख रहा है, क्या बोलना है, ये भी हमने बताया। वो मैसेज करते गए। यहाँ से 3 दिन के बाद जाने के बाद उनके अराउंड 10 से भी ज्यादा अपॉइंटमेंट्स बुक थी। तो ऐसे कुछ चीजें, ऐसे और इंटरेस्टिंग चीजें भी हम वो भी गाइड करते हैं। और वहां से जो शुरुआत हो गई सर की, तो अभी more than 2 लाख रुपीज पर मंथ गाँव में बैठ के ही, अपने घर पे बैठ के दिन में सिर्फ 5 घंटा देते हैं, बाकी टाइम खुद को देते हैं। खेती है जो भी है, उनकी मम्मी है उनकी भी सेवा वो करते हैं। और ये तरीके से वो करते हैं। तो हर एक का एक स्टोरी रहता है, उनके माँ के प्रॉब्लम की वजह से ही वो सब एक्सप्लोर करते करते ये फील्ड में आए थे। तो ये कुछ हमारे बैचेस के फोटोज है। तो बैचेस तो बहुत हुए हैं अभी, पिछले 3.5 साल में 700 से भी अराउंड 700 पेशेंट जो है हमने यहाँ पे कर लिए। सो वी हैव नाउ गिवन नॉट 800 बट more than 1,400 हैंड्स द सोसाइटी। अभी उसमें सब 700 नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट मैं बोलता हूँ कि 400 तो कर ही रहे हैं, तो more than 800 हैंड्स वी हैव गिवन टू द सोसाइटी। तो ये कारवा बढ़ते जाना चाहिए। और जैसे इसमें से 700 में से या 1,000 में से मुझे अगर 200 भी काबिल मिल रहे हैं ना, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सच में जाके प्रॉपरली, वैसे 5,000 लोग चाहिए। तो 5,000 करने तो कितने लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इसीलिए भी मोस्टली डिवाइन टच जो है ना, वो अभी कॉलेजेस में जाके वहाँ पे ही इन हाउस कैसे हम सेशंस ले सकते हैं, इसके लिए अभी हमारा काम चल रहा है। ऑलरेडी नासिक डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम स्टार्ट भी हो गया है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि अभी जो आपको अपॉर्चुनिटी है, जो वर्कशॉप आपके सामने है, उसको एनकैश करना आपको बहुत ज़रूरी हो गया है। ओके, बिकॉज हमारा जो स्टाफ है वो अभी, हम इसी के साथ में हेल्थ कैंप्स भी लेते हैं, क्लींजिंग कैंप भी लेते हैं, उसमें भी हमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है। हमारा जनरल ओपीडी जो है वो तो है ही, और अभी स्कूल कॉलेजेस में कॉरपोरेट्स में कैंप लेना, वहाँ पे ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करना, ये भी चीज़ें। और रेगुलर क्लासेस के लिए भी स्टूडेंट्स आते रहते हैं, जैसे रेगुलर लेक्चर चलते हैं तो हफ्ते में 2 बार वो भी आते हैं जो नासिक के हैं।
तो ये तरीके से काम करते हैं। तो जितना आप हो सके, जो अभी सामने डेट है उसको मैनेज करो, डिसाइड योर प्रायोरिटी। नेक्स्ट टाइम करते करते आपका नेक्स्ट स्टेशन कभी नहीं आएगा, वो ट्रेन छूट भी सकती है। Okay? तो 3 days हैंड्स ऑन वर्कशॉप, तो जैसे मैंने बोला कि जिन लोगों के लिए 20,000 भी थोड़ा अभी प्रॉब्लम है या फिर प्रेशर है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 16,500 में 5 और 6 मार्च को वर्कशॉप अटेंड करके सिर्फ बोन सेटिंग, बॉडी अलाइनमेंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन ये सीख के आप काम शुरू कर सकते हो। ओके, देन आपको 7,500 है, वो तो कॉलेज का फीस है ही जो आपको नेक्स्ट मंथ में देना है, और फिर भी आप डिप्लोमा के लिए जो है अप्लाई करके आप वो कंप्लीट कर सकते हो। अभी दूसरा है कि अ, जिसे ISTM एंड मायोफेशियल डिकम्प्रेशन सीखना है, बोन सेटिंग हो गया है, वो एडिशनल 7,500 देके वो सीख सकता है। ऐसे कुछ चंद ही लोग हैं जिनका वो हो गया और सिर्फ विसरल सीखना है, लेकिन हमने क्या किया है अभी कि एटलीस्ट 2 दिन आपको अटेंड करना बहुत जरूरी है। आइदर यू कम फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड डे और सेकेंड एंड थर्ड डे, तो आपको 16,500 के लिए आप जाओ, या फिर आप 7,500 एंड 7,500 15,000 के लिए आप जाओ। बट ये मैंने क्यों किया है, मेरे पुराने भी स्टूडेंट्स है कि जो विसरल मैनिपुलेशन आने से पहले ये सब सीख के गए थे, उनके लिए ही हमने बाइफर्केशन किया था, वही पोस्ट यहाँ पे आ गया है। ओके, सो ये 2 तरीके से जा सकते हो। और जिन्हें ये तीनों दिन का अटेंड करना है उनके लिए टोटल फीस क्या हो जाता है, 16,500 प्लस 15,000, 31,500 आपके लिए टोटल फीस हो जाता है विथ 3 days वर्कशॉप। ये तीनों चारों प्रोटोकॉल आप सीख जाएंगे। उसके बाद आपको जो है कंटिन्यूसली मेंटोरिंग रहेगा, और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सेशंस मिलेंगे, उनका एक्सेस मिलेगा। और ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डिवाइन टच आपको देता है कि हम आपको आपके ट्रेनिंग के सब वीडियोस के एक्सेस देते हैं। उसका एक्सेस आपको होता है, आप देख सकते हो, बाकी जगह पे वीडियो भी निकालने नहीं देते हैं, या फिर स्टूडेंट ही वीडियो निकालते रहते हैं, वो वीडियो में ही लगे रहते, कंसेप्ट पे ध्यान नहीं होता। यहाँ पे डेडिकेटेडली वीडियो शूटिंग करने के लिए बंदा रहेगा, वो करेगा, या आप में से कोई एक अगर शूटिंग कर रहा है तो एक ही बंदा करेगा, बाकी सब ध्यान लेंगे, और ट्रेनर भी उनको कोऑपरेट करेगा। तो ये तरीके से हम काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है कि आपका मन बन रहा है कि सर मुझे आना है, आप ऑफलाइन के लिए नहीं आ सकते हो, यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन। जैसे मैंने आपको फ्लेक्सी लर्निंग मोड बोला, वैसे आप स्टेप बाय स्टेप 6,000 से स्टार्ट करके आप पेमेंट कर सकते हो। आप अगर हेल्थ प्रैक्टिशनर हो तो आपको प्रैक्टिकल दिल्ली से, समझो आपको नासिक नहीं आना पॉसिबल हो रहा है, तो आप आपके वीडियोस बनाओ, ओके, वो भेजो, जो ऑनलाइन सेशन होता है उसको अटेंड करो, उसमें हम देखेंगे 1 to 1 भी वो एनालाइज करेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या गलत चीज़ें हो रही है, कैसे पोजीशन होना चाहिए, आपको गाइड करेंगे। और फिर धीरे धीरे थोड़ा स्लो हो जाएगा, 3 दिन में आएगा तो वो हो जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन फ्लेक्सी लर्निंग मोड में हम बोलते हैं कि कम से कम 3 महीना आपको लगने ही वाला है ये पूरा करिकुलम प्रॉपरली कवर करने के लिए। और ये तरीके से भी आप आगे जा सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है कि 2,000 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन कर देना है इस नंबर पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, QR पे भी आप कर सकते हो। देन वी विल डिस्कस विथ जो भी करस्पॉन्डिंग स्टाफ है उनके साथ आप डिस्कस करो। आपको लगता है कि मुझे मेंटोर के साथ 1 to 1 कॉल चाहिए, तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको वो एक 30 मिनट का कॉल भी हम शेड्यूल करके देंगे। उनके साथ बात करो, आपका जो भी आपको फ्लेक्सी लर्निंग मोड में जाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन में जाना है, वो डिसाइड करो। अभी ऑनलाइन से आप स्टार्ट करो, और जब आपको लगता है कि मुझे ऑफलाइन में आना है तो जो भी डिफरेंस रहेगा वही आपको पे करना है, वापस से पूरा फीस करने की पे करने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। तो फिर इतनी इत्मीनान से आप सोच के आगे जा सकते हो। बाकी फिर स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करेंगे, वैसे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सेशन का एक्सेस तो मिलने ही वाला है। ओके, तो वापस एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। 5 और 6 मार्च को है बॉडी एंड स्पाइन अलाइनमेंट, ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन उसे हम बोलते हैं। देन इसमें STT भी कवर करेंगे हम, स्टैटिक कपिंग भी कवर करेंगे। देन आएगा आपका ISTM एंड मायोफेशियल डिकम्प्रेशन, जो 6 मार्च को चलेगा। जैसे 5 मार्च मॉर्निंग 10 बजे से लेके 6 मार्च के आफ्टरनून अराउंड 2 बजे तक ये आपका पूरा बोन सेटिंग का वर्कशॉप प्रैक्टिकल सेशन चलेगा, जिसमें हम ग्रुप बनाते हैं, 10 10 10 के 3 ग्रुप बनाते हैं, और एक बंदा एक स्टेप को 9 लोगों के ऊपर परफॉर्म करता है, जिनको वहाँ पे हैंड्स ऑन मेंटोरिंग भी की जाती है। हर एक ग्रुप के साथ एक मेंटोर भी होता है। ओके,
तो ये चीजें हो गई। फिर सेकेंड डे आफ्टर लंच जो 3 बजे हम चालू करते हैं ISTM एंड मायोफेशियल डिकम्प्रेशन, वो चलता है नेक्स्ट डे। वो उसी दिन रात को अराउंड 9 बजे तक हम कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है। और फिर आ जाता है आपका विसरल मोबिलाइजेशन, जो मॉर्निंग 10 बजे 7 तारीख को चालू होता है, और दोपहर को अराउंड 4 बजे तक हम उसको खत्म करके फिर उसके बाद आपका जो है सर्टिफिकेशन वगैरह करके 5 बजे आपको फ्री कर देते हैं। तो ये सब है यहाँ पे। आपको क्या है, 3 दिन में अभी बोलेंगे सर एक्सपर्ट कैसे हो जाएगा, एक्सपर्ट तो कोई है ही नहीं ना, सीखना तो कंटिन्यू चलता है। लेकिन यहाँ पे जजमेंट आना और लॉजिक समझ में आना, कंसेप्ट अंडरस्टैंड आपको होना, ये जरूरी है। एक बार आप पाल्पेटेशन सीख गए, आप फील करने लगे लीवर किडनी कहाँ पे कैसे उसके बीट से आपको समझ में आने लगा, आप कर रहे हो, तब जाके आपको टेक्निक समझ में आता है। फिर वो कोई बड़ा मसला नहीं रहता है कि आप वीडियोस देख लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपके सपोर्ट के लिए वीडियोस है, और जितना इसमें आप सीखते हो ना, उससे भी आगे जाके करने के भी हमने वीडियोस बना के रखे। तब आपको वो भी समझ में आ जाने लगते हैं कि जब आप ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल कर लेते हो। तो ये तरीके से ये है। तो कोई इसमें शंका नहीं रखना है, अभी तक इतने बैचेस किए हैं तो हमें मालूम है क्या तरीके से फ्लो होना चाहिए, कैसे आपको सिखाना है, कैसे 3 दिन में आपको तैयार करना है कि चौथे दिन ही आप जो है प्रैक्टिस जो है आपका चालू कर पाएंगे। और जब तक आपका डिप्लोमा का प्रोसीजर पूरा फुलफिल नहीं होता है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्टर से प्रैक्टिशनर है, सर्टिफिकेट आपके पास वैलिड है, तो आप तो सीधा काम स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ रेड फ्लैग्स जो है वो धीरे 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 आपके कम होते जाएंगे जैसे जैसे आपका एक्सपर्टीज बढ़ेगा। और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो क्या करेंगे, वो इनिशियली आपका जो नियर बाय लोग हैं उन पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सॉफ्ट हैंड से कर रहे हो, वीडियोस भेज रहे हो, तो ये पूरा ऑनलाइन सेशंस अटेंड कर रहे हो, Q&A आपके आ रहे हैं, मेंटोर के साथ आप मेंटोरिंग कर रहे हो, रिपोर्ट अलग अलग आपके सामने आ रहे हैं, उनको रीड कर रहे हो, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा आप पूछ रहे हो, तो ये प्रोसेस पूरा चलेगा आपका। और कम से कम 3 महीना लगता है। विद इन 3 मंथ विल ट्राई टू कवर ऑल द 1 ईयर का जो भी ड्यूरेशन है वो सब। और फिर आपका एग्जाम हो जाता है। आपका जब सर्टिफिकेट आपको मई में, या फिर मई में मिस हो गए तो दिसंबर में, आपको जब वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, अभी जो ये बैच में आएंगे उनका सबका मई के कन्वोकेशन में तक हम कंप्लीट कर लेने का टारगेट रख के काम करेंगे। और जब वो आ जाएगा उसके बाद में आप आपका थेरेपी सेंटर भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। और वहाँ पे आपको क्लिनिक नहीं लिखना है, वो सब हम आपको गाइड करेंगे। नाम के आगे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो सब हम गाइड करेंगे। और किसी भी तरीके का आपको अ, जो है इन्वेसिव टेक्निक नहीं करना है, कुछ पेशेंट को खाने पीने के लिए देना नहीं है, और ब्लड नहीं निकालना है किसी भी हालत में, और एडमिट नहीं करना है, और बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट नहीं करना है। इतना कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सेफली प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? बाकी कुछ है तो हमारा पूरा पैनल है, वो आपको गाइड करेगा, लीगल से लेके सब चीज़ें आपको गाइड भी किए जाएंगे। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो भी वो केस में आपको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा। ओके। एंड बोन सेटिंग का जो वर्कशॉप वही है, अगेन वही रिपीट हो रहा है, तो 5 और 6 मार्च को बोन सेटिंग का वर्कशॉप है। 16,500 इसका फीस है। जिनको डिप्लोमा नहीं चाहिए, ऑलरेडी कुछ डेजिग्नेशन है, वो परस्यू करते हैं। डिप्लोमा चाहिए तो 16,500, एंड आफ्टर 1 मंथ 7,500 उनको देना है। ओके। सो ये हो गया बोन सेटिंग का। देन हो गया आपका मायोफेशियल डिकम्प्रेशन 7,500, एंड विसरल मैनिपुलेशन 7,500, ये 15,000 हो गया। ओके। टोटल फीस हो गया आपका 31,500। और इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन में बताया है कि अगर ऑफलाइन ऑनलाइन वालों को ऑफलाइन में आना है तो उनको वो 1,000 का कॉस्टिंग एक्स्ट्रा जा रहा है। ओके। सो उसमें भी हम वही कॉस्टिंग कर लेंगे, आपका 31,500 में कर लेंगे। बिकॉज ऑनलाइन में भी आपको एक अलग प्रिविलेज वहाँ पे दिया जाता है, और आप वो बैच के साथ में नहीं आपके हिसाब से आते हो तो एक एडिशनल वहाँ पे कॉस्टिंग आपको हमने रखा है। तो वो ठीक है, वो 31,500 का जो भी डिफरेंस रहेगा उसमें आपको कर सकते हो। सो प्रीफर टू कंप्लीट यूर 3 डेज हैंड्स ऑन वर्कशॉप। उसके बाद में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप थर्ड डे बोलना कि आपको क्या लगता है, फोर्थ डे आप किसी को प्रैक्टिस हाथ लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते। ओके। तो
उसके बाद में किसी किसी का क्या हो जाता है कि वर्कशॉप कर लिया और फिर घर पे जाके कुछ ही नहीं करते, सब भूल जाते 4-6 महीने बाद। तो अगेन आपको लगता है तो विद इन अ 6 मंथ कभी भी आप ये 3 डेज का हैंड्स ऑन वर्कशॉप जो आपने फीस पे किया है वो फ्री में रिपीट कर सकते हो। आपको सिर्फ इन केस हम अकोमोडेशन अगर देते हैं तो अकोमोडेशन का चार्जेस देना है, या फिर अदरवाइज आप ये फ्री में पूरा अटेंड कर सकते हैं। ओके। और 31,500 में हम हमारे सेंटर के नियर बाय में एक गुड अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे ग्रुप में आप रूम बुक करके आप रह सकते हो। और फूड की भी दोपहर की अरेंजमेंट रहती है, रात की जो है आपको देखना है। तो ये सब चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन हम इतना जो है आपके लिए वहाँ पे ऑलरेडी करते हैं। इफ़ इन केस किसी को लगता है कि आई डोंट वांट टू टेक दिस अकोमोडेशन, आप पहले ही कर लेंगे, तो इसमें फीस में भी आपको वहाँ से कुछ वेवरमेंट मिल जाता है। ओके। और ये बीएसएस डिप्लोमा के कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह है वर्ल्ड स्किल काउंसिल के रिवीजन के लिए। और एक यहाँ पे मैं बोनस है आपके लिए कि अगर आप 31,500 पे करके 3 दिन के वर्कशॉप के लिए ऑप्ट करते हो तो आपको ये जो कोर्स है हमारा फंक्शनल कपिंग का, जिसकी प्राइस 12,500 है, हमारे एलएमएस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी वो अवेलेबल है। और वो 6,500 में जो है अभी हम वहाँ पे ऑफर सब कैंपेन चल रहा है, ऑनलाइन लोग परचेस कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसका आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। ओके। सो जो 3 दिन के वर्कशॉप के लिए फीस पे करेगा उनको ये कोर्स का फ्री एक्सेस मिल जाएगा वर्थ ₹12,500। ओके। तो ये बोनस आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, 2,000 अभी पे करना है, अभी ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है। 2,000 पे करने के बाद आपका कंसल्टेशन हो जाएगा। फर्स्ट पेमेंट क्या है अपना, 6,000 का है। तो आप आपका जैसे बात हो जाएगा, आपका डिसाइड हो जाएगा, आपको लीव देखना है, जो देखना है आप देख लो। और फिर आप जब जैसे डिफरेंस पे कर देंगे 4,000 रुपीज़ का, तो 6,000 का आपका पेमेंट आ गया। आपको फर्स्ट स्लॉट वीडियोस का जो है वो मिल जाएगा। और आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपका लर्निंग जो है वो इमिडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। और आज वेबिनार में जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर है कि अगर वो रजिस्टर करते हैं उनको एडिशनल 1,500 रुपीज़ का डिस्काउंट में करता हूँ। विद इन अ 30,000 यू कैन ऑप्ट फॉर द ऑल कोर्सेस। ओके, जो आज वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करेंगे, अदरवाइज 31,500 ही आपके लिए फीस रहेगा। आप अगर पेमेंट करते हो तो इसी नंबर पे, जो नंबर पे पेमेंट कर रहे हो, इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको ये भेजना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे मैंने कंक्लूड कर दिया कि हम क्या कवर कर रहे, कैसे है। अगर आप मेरे इंटरव्यूज देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी आप देख सकते हो। यूट्यूब चैनल है हील विथ डिवाइन टच, ये हैंडल है यूट्यूब चैनल का, मेरे चैट में भी शेयर कर दूंगा। ओके। ये कुछ रिव्यूज़ है, सो ये आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, इसके वीडियोस अवेलेबल है। सो शी इज़ अ डॉक्टर ऑलरेडी from Pune, and this is her video. I discovered a revolutionary new approach and so many new ways of offering healing to my patients. मैंने पहले भी चलाए थे कुछ रिव्यू, वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ रिव्यूज थे। सो आई सी इट हेल्पिंग माई करियर एज ए हीलर एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर ग्रेटली। तो ही शी इज़ ऑलरेडी मेडिकल प्रैक्टिशनर, और ये करने के बाद डेफिनेटली वो मैजिक जो है उनके हाथ में आता है और वो सब चीज़ें होने लगती है। ये कुछ पेशेंट्स के जो है वो टेस्टिमोनियल्स है कि 3 से 4 साल से नहीं पहनता, 30 मिनट्स के ही सेशन में उनको ये सब आ गया, फायदा हो गया उसका, और वो नॉर्मली वॉक करने लगे। बाकी सब ये पूना से कोई पेशेंट आते हैं, अभी तो दुबई से भी 2-3 पेशेंट आके गए। जब इंडिया में आते हैं डेफिनेटली डिवाइन टच को विजिट ही करते हैं, और कुछ तो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए आए, ऐसा सब ये है। तो ये भी आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। ये सेलिब्रिटीज भी कुछ है, तो हमारे नेचुरल ब्यूटिफिकेशन के भी प्रोटोकॉल से। और ये तो बाद में किया, पहले तो मैम को स्पाइन का ही रिलेटेड इशू था, फिर उसके बाद में उन्होंने ब्यूटिफिकेशन के भी ट्रीटमेंट लिए। ये ही इज एन अनदर सेलिब्रिटी, मराठी सेलिब्रिटी। तो ये लोगों तक भी अभी डिवाइन टच पहुंचने लगा है। तो अभी इसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन आपको करना है फ्लेक्सी लर्निंग मोड। जैसे आपको फ्लेक्सी लर्निंग मोड में जाना है
ऑनलाइन मोड में जाना है तो आपको 6,000 का पेमेंट करके आप जो है कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपका डिसीजन हो जाता है, फोन पे बात होता है और आपको लगता है कि मुझे ऑफलाइन के लिए आना है, तो इंस्टेड ऑफ 6,000 आपको 9,000 जो है टोटल पेमेंट करना है। मतलब आपको अगर ऑनलाइन के साथ जाना है तो 2,000 आज दिया है, 4,000 और देना है। और अगर आपको ऑफलाइन के लिए आना है तो आपको 7,000 देना है। बिकॉज क्या है, 6,000 में आपको ये तो मिल जाएगा, 3,000 में आपका सब जो यहाँ पे अकोमोडेशन और सब चीज़ें जो भी कंज्यूमेबल लगने वाला है वो हमें अलाइन करना होता है। तो ऑफलाइन के लिए टोटल फीस, फर्स्ट पेमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन इज 9,000 एंड ऑनलाइन के लिए जो है वो 6,000 आपके लिए रहेगा। ओके। So we have some videos now. For the reason we'll skip it. So this is from my side. थैंक यू। और अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, मैंने आपने मेरा वीडियो मैंने जो ग्रुप पे डाला था वो देखा ही होगा कि एक सम्मानजनक करियर की शुरुआत कीजिए। और मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ कि इफ इन केस जैसे कोरोना का सिचुएशन आया था, वैसे कुछ लॉकडाउन का सिचुएशन आता है, या फिर सडनली आपका आप किसी इनकम सोर्स पे डिपेंड हो वो चला जाता है। आप बताओ कि आपके हाथ में अगर कुछ भी स्किल नहीं है, कैन यू सर्वाइव? तो हमारे हाथ में कोई भी स्किल होना बहुत जरूरी है। अभी इसमें कुछ स्टूडेंट्स भी रहेंगे जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो ये डिप्लोमा कोर्स जो है ना, इसको ऐसा नहीं है कि आपने आपका करंट एजुकेशन परस्यू करते करते वो छोड़ना पड़ेगा, या वो कंप्लीट करने के बाद ही आप ये कर सकते हो। इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th है, बट हम लोग 12th के ऊपर ही, स्पेशली 12th साइंस या उसके ऊपर ही हम प्रीफर करते हैं। हीलिंग प्लेटफॉर्म से है, साइंस बैकग्राउंड से। तो ये आपके हाथ में स्किल जो है ना, आप आपका काम करते करते डेवलप कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनको हम अभी परसों ही एक एमपीएससी के क्लासेस में जाके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्लासेस में जाके मैंने लेक्चर लिया। तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो लास्ट अटेम्प्ट है उनका, और फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में कि इसके बाद मेरा होगा क्या, है ना। तो अगर वो ये स्किल सीख लेते, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पैसे नहीं जुटा पा रहे, बराबर, तो उनके पास ये चैलेंज है कि कैसे वो सरवाइव करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, इतने साल कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें अगर ये चीज वो सीख जाते हैं और दिन में वो 2 घंटा भी खुद के लिए देते हैं, होम विजिट कर रहे हैं, ओके, जैसे भी है, तो 500 में, मतलब मिनिमम 500 एक सीटिंग का चार्ज कर लिया है, 1.5 आवर का एक सीटिंग है, तो भी वो 1,500 से 2,000 रुपये 2 घंटे में कमा लेते हैं। तो दे कैन सर्वाइव। और इफ इन केस अगर कुछ नहीं बनता है काम उसमें, बट स्टिल दे कैन सर्वाइव विद द यूज ऑफ देयर स्किल। और वो उसको इतना शिद्दत से अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं बोलता हूँ सरकारी वो नौकरी में जितना नहीं कमाएंगे ना, उससे ज्यादा तो उनको ये हीलिंग प्रोफेशन में वो आराम से कमा लेंगे, अगर वो जेन्युइनली प्रैक्टिस करते हैं, खुद को अपग्रेड करना वो स्टॉप नहीं करते हैं। ओके, सो द नीरज शाह सर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस थिंग्स, कि उनका भी बैकग्राउंड क्या था और कैसे वो ये फील्ड में आए, और कैसे खुद को अपग्रेड करते करते पिछले 7 साल में सर ने क्या लेवल पे अपग्रेड किया है, क्या लेवल की हीलिंग वो डिलीवर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये समझना ज़रूरी है। इसीलिए मेरी अपील है सबको कि चाहे आप जो भी प्लेटफॉर्म से हो, आपका कोई भी एज हो, कोई भी एज ग्रुप से आप हो, कोई भी आपका क्वालिफिकेशन है, कम टू अस, हम बात करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे, करते करते आपके हाथ में स्किल आते जाएगा। कबीर जी ने बोला बोला ही है, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। तो ऐसे भी लोग, और मैं बोलता हूँ कि जिनका स्लेट पूरा ब्लैंक था ना, और जो फर्स्ट टाइम ये सब कंसेप्ट सीखने आए, वो सबसे फास्ट और बढ़िया प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं आज के डेट में। ओके, और जो खुद को ब्लैंक करना नहीं चाहते हैं, अपना पिछला छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ग्रो करने में, रिजल्ट वाइज भी और फाइनेंशियली भी। तो ये चीज़ भी आपको समझना ज़रूरी है। अभी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आप पूछ सकते हो, आप चैट में डाल सकते हो आपके क्वेश्चंस, या फिर माइक पे भी आप बोल सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ वगैरह तो ऑलरेडी मैंने ग्रुप में डाले हैं, या फिर मैं शेयर कर दूंगा। यूट्यूब चैनल का हैंडल मैं यहाँ पे डालता हूँ। यस। तो नीरज सर,
आप कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे लास्ट में? यस, यस, क्वेरीज आप चैट में डाल सकते हो. ओके, 3 दिन में कवर होगा क्या? सर 3 दिन में बहुत अच्छी तरीके से कवर होता है, आपको कोई डिस्टरबेंस यहाँ पे नहीं है. डेली हम कम से कम 10 घंटा जो है हम टीचिंग पे देने वाले हैं. एंड इवन दो आफ्टर द टीचिंग भी मेंटर्स आपके साथ रहते हैं. आप प्रैक्टिस करो, और यहाँ पे लाइव बॉडी पे ही हम प्रैक्टिस करते हैं. ओके, सो यहाँ से बाहर जाएंगे तो आपको 10-10 लोगों पे प्रैक्टिस करने के लिए वो कब मिलेंगे? तो यहाँ पे ये डेडिकेटेडली काम अगर आप करते हो, सब प्रोटोकॉल आप अच्छे से समझ लेते हो, सभी बैक पेन है, नी पेन है, सभी पेन का कैसे रूट कॉज होता है, कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं, ये सब आप समझ लेते हो. और उतना ही अगर आप करते हो ना प्रॉपरली, आप अच्छे से रिजल्ट दे पाते हो. और ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं. ओके. सर नमस्कार. ये नमस्कार, नमस्कार सर. आवाज येतो? येतोय सर, बोला. सर मी कामात होतो, ऑन ड्युटी असल्यामुळे बंद ठेवला, फक्त जोडून ठेवला. येस सर, आताच एक येस. कशी चालली सर प्रॅक्टिस? हो हो, तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने एकदम बेस्ट चालू आहे. आणि बरोबर. सहकार्य खूपच आहे तुमचं. आताच हे, एक एवढ्यात आपलं वेबिनार चालू होतं, त्यावेळेस एक वर्करचा एक सर्वायकल प्रॉब्लेम होता. येस. साईड डिस्पेन्सरीत मी बसलेलो होतो, तर त्यांना विचारलं काय झालं म्हणून. एक पेन किलर वगैरे घेतलं, तर त्याला पेन किलर दिलं नाही आणि थोडीशी ट्रीटमेंट दिली त्याला. 5-6 मिनिटांमध्ये आता बरं वाटतंय. मग आता चाललो डिपार्टमेंटकडे, त्याच्यामुळे व्हिडिओ काही छान, चालू केला नाही. छान, छान. नाही, तुम्ही तर पूर्णच केलाय सर. सगळे प्रोटोकॉल तुम्ही शिकलेत आणि छान काम करताय तुम्ही. वर्किंग असल्यासोबत तुम्ही करताय आणि सर्व फॅमिलीला तुम्ही याच्यात इन्व्हॉल्व करताय. ही खूप चांगली गोष्ट आहे. तुमचे दोन्ही मुलं, वाईफ, तुम्ही स्वतः सर्वांनी जातीने एकत्र सर्व ट्रेनिंग पहिली तुम्ही अटेंड केली, नेक्स्ट टाइम त्यांना घेऊन हो, आला. एक खूप फायदा झाला आणि सर. खूप फायदा एक तुम्हाला निश्चित होणार आहे. आता जे आता वेबिनार मध्ये ऍड असतील ना, तर मी तर म्हणतो ते कपलने करायलाच पाहिजे. येस. हो, कारण आता मी माझी गंमत सांगतो, पर्सनली पण पब्लिकली बोलतो. जेव्हा मी सप्टेंबरमध्ये बॅचला आलो होतो, त्याच्यानंतर एक लेडी आली माझ्याकडे, तिचं पोट दुखत होतं. तर मग अननोन स्त्रीला हात कसा लावायचा म्हणल्यानंतर, आता तर तुम्हाला माहितीच आहे आमचं बॅकग्राऊंड कसं आहे, की एकदम लाजाळू वगैरे असेल. तर मग मी त्या स्त्रीला ट्रीट केलं, तर आमच्या घरात भांडणं झाली. हम्म. भांडणं म्हणजे हम्म. थोडस नकोसं वाटलं हा, त्यासाठी. बरोबर. गावाकडे होणार आहे सर तो प्रॉब्लेम. हो. पण मग हे नॉन मेडिको असल्यामुळे हे तर होणारच आहे. बरोबर, बरोबर. मग नेक्स्ट सेशनला जेव्हा तुम्ही मॅडमला घेऊन हो, आलात. मग थोडस एज्युकेट करण्यासाठी मग म्हटलं चला सगळेच जाऊया. बरोबर. आता त्याचा प्लस पॉइंट असा झाला की लेडीज पण यायला लागल्यात, आणि छोट्या छोट्या गोष्टी असतात की जे आपल्या डिवाइन टच मध्ये वर्कशॉप मध्ये शिकवलेल्या. आता हे तर थोडीशी गोष्ट आहे, पण मी आता बोलू नाही शकत. पण तुम्ही जे शिकवलेलं आहे ते सगळं एकदम 100% बरं आहे. आणि लेडी पेशंट हँडल करताना काय काळजी घ्यायची, हे सगळं आपण सांगितलेलंच आहे. हो हो, आता ते तिच्यासोबत वर्कशॉपला आल्याशिवाय काही कळणार नाही. हा, म्हणून कसं आहे, वाईफला इन्व्हॉल्व करणं गरजेचं आहे, की त्या लेडी हो, सोबत जर कोणी आलेलंच नाही आहे सोबत, तर मग ऍटलिस्ट जर तिथे एक आपलं लेडी थेरपिस्ट हजर असणं खूप गरजेचं आहे. बरोबर आहे. आता वेबिनार मध्ये जर लेडीज असेल ना, तर मी तर म्हणतो घरच्या माणसांना पण त्यांच्यात इन्व्हॉल्व करा, किंवा मग तर हे काय जेंट्स असेल स्किल आहे तर ना, लेडीज. स्किल कधी वाया हो जात नसतं. हातामध्ये काहीतरी हो. स्किल आजच्या डेटला पाहिजे. उद्या आता अचानक, आता आज तुम्हाला तुमचा सर कॉन्फिडन्स सांगा ना, की आज तुम्हाला जी पहिली अनसर्टन्टी होती, तेव्हा जॉब आहे, सगळ्या गोष्टी, कोरोना सारखी जर परिस्थिती आली, तुम्ही काय कराल? आणि आता तुमचा कॉन्फिडन्स सर किती हे फरक पडलाय? कोरोनाच्या काळामध्ये
नेव्ही कूलरचा होता पडल्यानंतर मिसेसला. तर हम्म. 2 महिने डॉक्टर पण बंदच होते आणि जरी गेलं तरी साधारणतः 10 एक फुटावरून ट्रीट करत होते. फक्त विचारायचे आणि औषध गोळ्या देत होते. तो जवळपास आहे ना 1 वर्ष तो प्रॉब्लेम सांभाळला. मला पण त्यातलं काही माहिती नसायचं. आणि एक गावाकडून एक म्हातारा माणूस आला लॉकडाऊन संपल्यानंतर. त्याने फक्त नेव्ही कूलरला हॉट लावला आणि थोडासा पाय ओढला, जसं आपण आम्हाला शिकवलं त्याप्रमाणे. बरोबर. पण लगेच जिनावर चढायला लावला, लगेच ओके झालं. हेच ट्रेडिशनल म्हणजे बोन सेटिंग आहे हो ना? हो हो. आता हा. त्या माणसाला तर काही कोर्स नाही, काही नाही, त्याचा एक्सपिरियन्स वडिलापार्जित होता. मग त्यावेळेसच मला असं वाटलं की कुठेतरी मला हे मिळायला हवं. तर त्यातल्या त्यात आपल्या डिवाइन टचची पण गाठ झाली आणि आमचं सगळं आयुष्यच बदलून गेलं. आता गावाकडे जर गेलो आम्ही तर आमची वाट कमीत कमी 7-8 पेशंट वाट पाहत बसतात. बघत असतं. तर कोणत्याही ते गावाला गेलो. तोच मी हो व्हिडिओ टाकलाय की एक सन्मानजनक करिअरची सुरुवात तुम्ही करू शकता बाबा, की इथे तुम्हाला हो ना तो रिस्पेक्ट पण मिळतो. सर. आता गोष्टी आता आहेत. आम्ही जर समजा कार घेऊन जात असतो गावाकडे इकडे तिकडे, तर येताना मी 10,000 रुपये घरी म्हणजे रिटर्न घेऊन येतो. छान. म्हणजे एका विजिटला म्हणजे कोणाच्या तरी आमच्या बहिणीच्या गावाला किंवा मामाच्या गावाला जर गेलो तर तिथं ऑलरेडी आमची वाट पाहायला म्हणजे तिकडे जाहिरातच होऊन गेलेली असते का आज मामा येणार आहे किंवा मग काका येणार आहे, जे आमचे रिलेटिव्ह असेल ते. तर ते एवढी जाहिरात करून टाकतात की आम्ही जायच्या अगोदर, भेटायच्या अगोदर, चहा पाण्याच्या अगोदर ते पेशंट घेऊन आणि नंतर रिलॅक्स बसावं लागतं. येस, ते म्हणजे होणारच आहे. हा जेन्युनली प्रॅक्टिस करणं, ओव्हर कॉन्फिडन्स मध्ये नाही येणं आणि सॉफ्ट हो हँडेडली प्रॅक्टिस करणं, एवढं जर आणि तुम्ही केलं ना, तिथं ऑटोमॅटिक तुमची आपल्या पब्लिसिटी होते. आपण जे शिकवलं ना, रेड झोन ओळखणे, हा, एवढं जरी रेड केलं फ्लॅग. तरी ओव्हर कॉन्फिडन्स नाहीये असं समजून बरोबर. चालायचं. आणि मेंटोरिंग आहेच, मेंटोरिंगचं हो तर आणि काय. नीरज शाह सरांचे तर कंटिन्यू साथ असते. जेव्हा अडचण आली तेव्हा तर ते तर मोकळेच असतात आमच्यासाठी. बरोबर बरोबर. हो. येस येस सर, थँक्यू. खूप छान रिव्ह्यू दिला तुम्ही. Yes. भेटूया अजून. आणि आता आपलं हो परत सर, 5-7 मार्चला आहे. अभिनंदन पण जाता जाता बोलतो. हो हो, येस ठीक सर. आहे, ठीक. सो आयुष ठेवू सर. इंटरनॅशनल मेडिकल असोसिएशनचं आपल्याला नॉर्थ महाराष्ट्र झोनचं जे आहे ते अध्यक्षपद मिळालं आहे आणि आता त्याच्या मार्फत खूप छान कामं आणि उपक्रम आपण राबवू शकतो. एक चांगली टीम आपल्याला मिळाली आहे जी सगळ्याच ऍस्पेक्ट मध्ये आपल्याला सपोर्ट करेल, लिगल पासून ते सगळ्याच. तर ते चांगलं आहे. आता रिसेंट आता आमची कमिटी मीटिंग होईल तेव्हा सगळ्यांशी ओळख होईलच माझी आणि मग पुढे आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी अजून छान काम आपण करू शकतो. येस सर. येस, थँक्यू सर. ओके सर. येस. अजून कोणाचे काय डाउट्स, क्वेरीज? Okay, so we'll stop recording and then continue.